1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मैथ्यू 7 चैप्टर 7 वर्स से 29 वर्स, जेनेसिस 23 चैप्टर 24 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन से 29 वचन तक, उत्पत्ति 23 अध्याय 24 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Ridanika ba akasihi gumbo okutina rabaha akasehi gumbo rokosa kire beketina mako alaraha adikamo rokolaraha dahimo nokosa tal asi uzasken un ahalarabaha kase borokosa lahdol ilala hase sehkatin iraha bakasi yandu gumba ahasi larabahasa। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 7 चैप्टर 7 वर्स से 29 वर्स। आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, हम वचन की गहरी बात को खोने मत दीजिए। आपके बिना हमें वचन की बात समझ नहीं आ सकती है, और वचन हमारे अंदर का फाउंडेशन बनना है। हमारे अंदर का विश्वास मजबूत होने के लिए तेरा वचन का गहरा भाग हमें समझ में आना है। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, आपके बिना ये हो नहीं सकता है। हमें सहायता करो समझने के लिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 7 चैप्टर 7 वर्स से 29 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से। आस्क एंड इट शैल बी given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you whom, if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in there it. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits ye shall know them. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth the sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. And it came come
And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन से 29 वचन BSI बाइबल में से। Ridanikam izial raha lekto lara se kiante ed ओरिया से। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन से 29 वचन BSI बाइबल में से। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकरा और चौड़ा मार्ग 13 वचन से आगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालुओं पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे अंदर बने रहे, और पिता ये फाउंडेशन पिता हमारे अंदर मजबूत रहे। इसके ऊपर से तेरे भेद, तेरे प्रकाशन हम में प्रकट होते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।